Hello, this is the lecture number 9 for the chapter probability for the class 12th, and the next topic is probability distribution. Now, what is a probability distribution? Probability distribution is to find the probability of all the option of an event in a given random experiment. Suppose in a throw of a coin, one coin is tossed, suppose. So find the probability distribution of head. So it means you have to find the probability of all the options of getting a head. Now, what you have to do in this, you have to draw the probability distribution like this, and you let the event be X. Here the event is head, and you have to find the probability of this. Now we have thrown a coin. So how many heads you can get in a single throw of a coin? तो you can get zero head, आपका zero head हो सकता है, या you can get only one head. So it means you have to find the probability of zero head and only one head, because in a throw of a coin you can get a head only 0 times or one head. या तो आपका head आएगा या tail आएगा. ये sample space है आपका. Suppose we have thrown 2 coins. The sample space will be head, 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 tail, 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 head. And suppose you have to find the probability of probability distribution of head. So how many times you can get at most head? So you can get 0 head, you can 1 head, you can get 2 heads. So then we have 0, 1 and 2. The value of X will be 0, 1 and 2, and you have to find the probability of that. So in case of this one coin, what is the probability of getting 0 head? 0 head आने की probability 1/2 है. 0 head एक बार आ रहा है, एंड 1 हेड कितने बार है? 1/2 है. 0 हेड आपका 1 हेड एक ही बार आ रहा है, 2 में से, तो 1/2 बराबर प्रोबेबिलिटी है. सपोज हमारे पास 2 कॉइन होते तो हेड आने की 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछी जाती 2 कॉइन्स में. तो ये आपका सैंपल स्पेस हो गया. हेड 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 टेल 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 हेड. तो इसमें आपके पास 0 हेड आता, 1 हेड या 2 हेड. 0 हेड आ सकता है, 1 हेड आ सकता है या 2. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 हेड? 0 हेड इसमें आ रहा है, केवल 0 हेड, एक भी हर हेड इसमें नहीं आ रहा. तो 1/4. 1 हेड कितनी बार आ रहा है? इसमें और इसमें 1 हेड आ रहा है, तो इट विल बी 2/4. और 2 हेड्स केवल एक बार आ रहा है, 1/4. अगर आप सबको इसको ऐड करेंगे आपके पास ये टोटल 1 आएगा. द प्रोबेबिलिटी, यू नो दैट द प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द इवेंट इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू 1. तो एक तो ये चीज है आपकी इस टॉपिक में, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. After that, you have to find the mean and variance in standard deviation of the random variable. Random variable यहाँ पर है कि head आने का क्या इसमें mean है in a two coins of a toss. तो in that case, mean निकालने के लिए आपको क्या करना है? तो mean निकालने का फॉर्मूला है summation xi into pi. xi और pi के प्रोडक्ट के सम का mean कहलाता है. तो इट मीन्स यहाँ पर आप एक कॉलम और बनाएंगे. In that column you have to find x into px. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. 0, 2/4 and 2/4. ये और इनका सम निकाल लीजिए. कितना हो जाएगा? 2/4, 2/4, 4/4, दैट इज 1. तो इसका मीन आ गया 1. तो इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए 2 कॉइन्स और 1 coin is tossed 2 times, the mean of getting a head is 1. ठीक है. इसके बाद है वेरिएंस. ये मीन निकालने का फॉर्मूला हो गया, समेशन xi इंटू पी आई. उसके बाद है वेरिएंस. वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला है समेशन x स्क्वायर पी आई माइनस मीन का स्क्वायर. मीन का स्क्वायर. तो इट मीन्स टू फाइंड द वेरिएंस वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ xi स्क्वायर इंटू पी, एंड का सम में से उसका मीन का स्क्वायर माइनस करना. तो इट मीन्स इन वन ऑफ द कॉलम you have to find x square, means 0, 1 and 4. In the next column you have to find the product of this. x square into p का प्रोडक्ट निकालेंगे. तो x स्क्वायर ये रहा, p ये रहा, कितना आएगा? 0. x स्क्वायर इंटू पी दैट इज 2/4. x स्क्वायर इंटू पी दैट इज 1. इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, x स्क्वायर को px से. तो इसका सम निकाल लीजिए. हमें इसका सम की जरूरत है. 1/2 प्लस 1, 3/2 आएगा. सो इट्स वेरिएंस इज 3/2 माइनस मीन अभी हमने निकाला था 1.
तो आ जाएगा 1/2. तो वेरिएंस ऑफ दिस इज 1 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस होता है, दैट इज 1/2 का रूट. So this is things you have to done in this topic. You have to find the probability distribution table, or after finding the probability distribution table, you have to find the mean and the variance or the standard deviation of the random variable. Random variable can be anything, to find the head or a tail, whatever will be there. So is the topic here, probability distribution. So this exercise is exercise number 13.4. 13.4 actually exercise है. Open your book. 13.4. In this, in question number 1, it is a table is given and you have to find whether this is the probability distribution table can happen or not. So what is given? X, its probability is given. The x is 0, 1 and 2. Its probability is given as 0.4, 0.4 and 0.2. Now you have to find whether this table can happen or not. It can happen only if the sum of all the probability is coming out to be 1. ये 1 के इक्वल आ रहा है, तो this table can happen, or this random experiment can happen. In the second part, if like this, you can tell whether it's data possible or not. If any one of the probability is like this, अगर ये आपका मान लिया 3 होता तो it will be how much? 1.1. तो ये 1 के इक्वल नहीं आ रहा एग्जैक्टली, तो इट इज कैन नॉट हैपन. या फिर सपोज एनी प्रोबेबिलिटी इज माइनस, कोई भी प्रोबेबिलिटी माइनस होता, तो इवन देन यू आर गेटिंग द सम एज 1, बट वन ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज नेगेटिव विच कैन नॉट हैपन. सो टेबल कैन नॉट, दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैन नॉट हैपन. सो इन द थर्ड पार्ट ऑल्सो the sum of all the probability is 0.6, 0.1, 0.2, it is coming out to be 0.9. The third part of this question cannot happen. In fourth part of this question, the probability of z is 0.3, 0.2, 0.4, 0.1. तो 5 ये 1.05 आ रहा है टोटल सम 1.05. तो again in that case also this probability distribution cannot happen. So this is the question number like this. It is given. If you see the book, see it in this. The probability of z is 0.3, 0.2, 0.4, 0.1. इनको ऐड करने पर it is not equal to 1. So it is cannot happen. This is the sum of all the probability is 0.6, 0.1, 0.2. It is 0.9. This cannot happen. And previous this in the second part of this question, we have the one of the probability is minus 0.1. This cannot happen. So this is the question number 1 of this exercise 13.4. Now in question number 2. A bag contain 5 red and how many black ball? 2 black balls are there. 2 balls are drawn randomly draw करा है, and it is noticed at x. Represent the number of black balls. So what is the value of x can be? You are taking out 2. So the value of x can be 0, 1 या 2. It means we are taking out 2 balls and the balls happen to be black. So we are taking out 2. So you can take out 0 black ball, 1 black ball or 2 black ball. This is the value of x. Only this you have to tell. In question number 3. Let x represent the difference between the number of heads and the number of tails obtained when a coin is tossed 6 times. Coin को हमने 6 टाइम थ्रो करा है, ध्यान से देखिएगा 6 टाइम्स. एंड नंबर ऑफ हेड एंड नंबर ऑफ टेल्स is obtained. Obviously you'll get head or tails. If you are getting 6 head, you'll get 0 tails. And x is the difference between the head and tail. x जो है difference between head and tail. head और tail का difference है. तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, ध्यान दीजिएगा. अगर आपके पास 6 हेड आ गया तो नेचुरली इट विल बी 0 टेल. तो डिफरेंस दोनों का 6 हो गया. 6 हो सकती है x की वैल्यू. इफ यू आर गेटिंग 5 हेड तो नेचुरली यू विल गेट 4 हेड्स. 4 हेड आएगा कि टोटल आपके पास हाउ मेनी, सॉरी, इफ आर गेटिंग 5 हेड्स यू विल गेट 1 टेल. तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 4. तो द x विल बी 4. अगर आपके पास 4 हेड्स आते हैं तो 2 टेल आएंगे, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 2.
यहाँ 2 लिखिए। एक्स डिफरेंस बिटवीन द हेड एंड टेल। अगर आपके पास 3 हेड्स आ गए तो नेचुरल बात है 3 टेल आएंगे, दोनों का डिफरेंस हो गया हाउ मच 0। अगर आपके पास 2 हेड्स आए तो नेचुरली 4 टेल्स आएंगे, दोनों का डिफरेंस 2 हो गया, जो कि ऑलरेडी डिफरेंस पॉजिटिव ही रहता है, माइनस में नहीं आएगा। एंड इफ वी हैज 1 हेड तो नेचुरली 5 टेल विल बी देयर एंड देयर डिफरेंस विल 4, ऑलरेडी हमारे पास है। एंड 0 हेड 6 टेल होंगे, दोनों का डिफरेंस 6 है तो 6 हमारे हैं। तो इन दिस केस द वैल्यू ऑफ x विल बी 6 4 2 0। डिफरेंस बिटवीन द हेड एंड टेल व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम, 6 बार हेड आया तो 1 बार टेल आएगा, दोनों का डिफरेंस 4 हो गया। 6 हेड 0 टेल तो दोनों का डिफरेंस 6 हो गया। 5 हेड तो 1 टेल आएगा, दोनों का डिफरेंस 4 एंड सो ऑन। दिस द क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब पूरा आपको टेबल बनाना है। नंबर ऑफ हेड इफ 2 टॉसेस ऑफ ए कॉइन, 2 कॉइन को हमने टॉस करा है, तो हमने एक तो डायरेक्टली सैंपल स्पेस बना के कर सकते हैं या आप इंडिपेंडेंट इवेंट की तरह भी कर सकते हैं। तो 2 कॉइन्स हमने टॉस करे हैं, 2 कॉइन्स। तो इसमें x की वैल्यू क्या हो सकती है 0 1 या 2। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x निकालना है और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। अब आप कैसे लिखेंगे? अब आपको लिखना है P0, x की वैल्यू अगर 0 आ जाए तो x की वैल्यू 0 का मतलब है 2 कॉइन आपके टॉस करें तो इसका मतलब आपके पास पहला भी हेड ना आए और दूसरा भी हेड ना आए। इस तरह से पहला भी हेड ना आए और दूसरा भी हेड ना आए, इंडिपेंडेंट इवेंट की तरह कर लो। हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, 1/4। या हम इस तरह से कर लें, ई को हमने हेड मान लिया तो इसका मतलब आप यहां पर ऐसे लिख लें, पहला भी हेड ना आए और दूसरा भी हेड ना आए। तो हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 1/4। हमने पहले किस तरह करा था, हमने इसका सैंपल स्पेस लिख लिया था इस तरह का। ठीक है, जैसा आप ठीक कर सकते हैं, ये कर लो। तो 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 1/4 ऐसे आ गई। देन P1 का क्या मतलब है, मतलब x की वैल्यू 1, तो इसका मतलब एक हेड आ जाए। तो एक हेड कैसे हो सकता है, पहला हेड हो जाए दूसरा हेड ना हो, या फिर पहला हेड ना हो दूसरा हेड आ जाए। इस तरह से 2 केसेस बनेंगे, इस तरह से कर लीजिए। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, ना आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, प्लस हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो 1/4 प्लस 1/4 1/2 आ गया। इट विल बी 1/2, तो यहाँ पर 1/2 लिख दिया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिया हमने। इस तरह से P2 का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P2? P2 का मतलब है दोनों हेडों, तो पहले में भी हेड आ जाए और दूसरे में भी हेड आ जाए। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/4 हो गया, ये 1/4 लग दीजिए। तो जब आप 2 बार थ्रो कर रहे हैं फिक्स हो गया। अगर P0 में हमेशा ये लिखा जाएगा, P1 में हमेशा ये लिखा जाएगा। PE यहाँ पर E क्या है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, यहाँ पहले से लिख लो 1/2। ठीक है, ये फिक्स कर लीजिए। व्हेन वी आर थ्रोइंग वी हैव x वैल्यू 0 1 या 2, तो P0 ये होता है, P1 PE PE0 प्लस PE0 PE, और PE P2 मीन्स PE इंटू PE, बोथ में हेड आ जाए। ये E बार बार चेंज होगा एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ P विल ऑल्सो चेंज। नाउ वी आर गेटिंग हाउ मेनी, ये आपका जो सेकेंड पार्ट है, वी आर थ्रोइंग द कॉइन 3 टाइम्स एंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेल, तो E यहाँ पर आना टेल है। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पर 0 1 2 या 3, 0 1 2 या 3, एंड E क्या है मेरे पास, E यहाँ पर टेल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेल का पूछा रहा, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2, और टेल ना आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, और इसकी प्रोबेबिलिटी हमें लिखनी है। तो फिक्स हो जाएगा 3 वाला भी, 2 वाला हमने फिक्स करा था। नाउ व्हाट इज P0? P0 का मतलब एक में भी 3 थ्रोज में एक भी टेल ना आए, तो पहले में भी टेल ना आए, दूसरे में भी टेल ना आए और तीसरे में भी टेल ना आए। तो 1/2 इंटू 1/2 1/8, ये फिक्स है। 3 बार थ्रो करने पर ये बनता है P0 में। P1 का क्या मतलब है, P1 का मतलब है 3 थ्रो में एक बार टेल आ जाए। तो 3 केसेस बनेंगे, पहले पे टेल आ गया, दूसरे पे टेल नहीं, तीसरे पे टेल नहीं, या फिर पहले पे टेल नहीं आया, सेकंड पे वी आर गेटिंग टेल, एंड थर्ड वी आर नॉट गेटिंग टेल। या थर्ड केस,
पहले में भी टेल नहीं आया, दूसरे पे भी टेल नहीं आया, थर्ड पे टेल आ गया। ठीक, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 1/8। ये भी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 1/8। ये भी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 1/8, दैट इज 3/8। P2 का क्या मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2? मीन्स इन 3 थ्रोज, इन 3 कॉइन्स वी आर गेटिंग 2 टेल्स। 2 पर टेल आ जाता है, 2 पर टेल बिल्कुल उसका उल्टा जाएगा। पहले पर नहीं आया टेल, 2 पर आ गया, या फिर पहले पर टेल आ गया, दूसरे पे नहीं आया, तीसरे पे आ गया, या फिर 2 पर आ गया, तो हमारे पास सपोज पहले पर भी टेल आ गया, दूसरे पे भी टेल आ गया, और तीसरे पे टेल नहीं आया। ये हो गया, फिक्स हो गया। P2 3 थ्रोज में हमेशा ये आएगा। P0 यहाँ पर, P0 यहाँ पर, P0 और 2 पर लिख दो। ये 1/2 1/2 1/2, तो 1/8 1/8 1/8 कितना आ जाएगा, ये 3/8। तो यहाँ पर भी आपका 3/8 आया, ये भी आपका 3/8 आ गया, फिक्स हो गया ये। नाउ P3 का मतलब है कि तीनों पर ही हेड आ जाए, मतलब पहले पर भी हेड आ जाए, दूसरे पे भी हेड आ जाए, और तीसरे पे भी हेड आ जाए। तो 1/2 1/2 1/2 1/8, तो यहाँ पर 1/8। तो इट इज़ फिक्स नाउ कि अगर आपने 3 बार थ्रो कराए कॉइन को, तो PE ये निकाल लिया। P0 पर हमेशा ये आएगा, P0 इंटू P0 इंटू P0। P1 में किसी एक पर ना आए, इस पे आ गया, इस पे आ गया, इस पे नहीं आया, इस पे नहीं आया, लास्ट पे 2 पे नहीं आया, इन पहले तीसरे, मतलब एक पर हेड आ जाएगा, एक पर टेल। तो यहाँ पर आपका इस पे नहीं आया, इस पे नहीं आ गया, इस पे आ गया, फिर यहाँ पर आ गया, फिर तीसरे पे आ गया। P2 का मतलब 3 में 2 बार आ जाए, इन दोनों पे आ गया, पहले और तीसरे पे आ गया, पहले और दूसरे पे आ गया। P3 का मतलब ऑल तीनों पर टेल आ गया, तो 3/8। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया जो हमने 3 बार थ्रो करा। इसी तरह से आपका 4 का हो जाएगा, 4 इन द थर्ड पार्ट। क्या है हमारे पास थर्ड में, नंबर ऑफ हेड इन 4 टॉसेज ऑफ ए कॉइन। तो x की वैल्यू मेरे पास 0 1 2 3 और 4 होगी। उसी तरह से इसका टेबल बनेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी। E क्या है यहाँ पर, हेड आना, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारी, PE हो गया हमारे पास 1/2, और हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। P0 का क्या मतलब है, P0 का मतलब है पहले पे हेड नहीं आए, दूसरे पे भी हेड नहीं आए, और तीसरे पे भी हेड नहीं आए, और चौथे पे भी हेड ना आए। 4 बार है ना, तो 1/16, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 1/16, इस तरह से। P1 का क्या मतलब है, 4 में एक बार हेड आ जाए, 4 में एक बार, तो 4 ऑप्शन बनेंगे। इस पर आ गया, सेकंड पे नहीं आया, थर्ड पे नहीं आया, फोर्थ पे नहीं आया, फिर प्लस पहले पे नहीं आया, दूसरे पर हेड आ गया, तीसरे पे नहीं आया, चौथे पे नहीं आया, लाइक दिस। या फिर लेट अस से थर्ड पे आ गया तो फर्स्ट पे नहीं आएगा, सेकंड पे नहीं आएगा, थर्ड पर आ जाएगा, एंड फोर्थ पे नहीं आएगा। एंड इन द फोर्थ केस, फर्स्ट वी आर नॉट गेटिंग हेड, इस सेकंड पे भी नहीं आया, थर्ड पर भी नहीं आया, एंड फोर्थ पे आ गया। 4 में से एक बार आएगा, 4 ऑप्शंस आर देयर, 1/2 1/2 1/2, दैट इज 1/8 16 1/16 1/16 1/16, तो 4/16 आ जाएगा यहाँ पर, 4/16। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P2 का मतलब है 4 में 2 बार आ जाए। तो 2 में कैसे आ जाएगा, हमने फर्स्ट और सेकंड में ले लिया सपोज, और लास्ट में 2 में नहीं आया, ऐसे। या फिर सपोज हमने पहले पर आ गया, दूसरे पर फर्स्ट पर आ गया, दूसरे पे नहीं आया, तीसरे पर आ गया, चौथे पे नहीं आया। कितने केसेस बनेंगे, 4 ही बनेंगे। लेट अस से पहले पर आ गया, सेकंड पे नहीं आया, थर्ड पे भी नहीं आया, और फोर्थ में आ गया। ठीक है, ये 4 केसेस हो गए। सपोज हमने ले लिया पहले पे नहीं आया, सेकंड पे आ गया, थर्ड पर आ गया, फोर्थ पे नहीं आया। देन वन मोर केस, पहले पे भी नहीं आया, दूसरे पे भी नहीं, दूसरे पर आ गया, तीसरे पे नहीं आया अब, और चौथे पर आ गया। तो यहाँ पर दूसरे और तीसरे पे, यहाँ दूसरे और चौथे पर आ गया। अब हमने एक केस और ले लिया कि अब पहले पे नहीं आया, दूसरे पे नहीं आया,
तीसरे और चौथे पर आ गया लाइक दिस। तो 1 2 3 4 5 6 केसेस बन रहे हैं। तो 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16, तो 6/16 आएगा 2 में, 6/16। एंड P3 अगर आपको 3 निकालना है तो बिल्कुल 3 वाला इसका उल्टा हो जाएगा, 3 पे आ जाए तो इस पे नहीं आया, इन तीनों पर आ गया, इस पे नहीं आया, इन तीनों पर आ गया, इस पे नहीं आया, इन तीनों पर आ गया, इस पे नहीं आया, इन तीनों पर आ गया, बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा, 4/16 ही आएगा, 4/16 ही आएगा। और P4 का मतलब चारों पर आ जाए, PE इंटू PE इंटू PE इंटू PE 1/16 आ जाएगा। तो ये थर्ड वाला है फर्स्ट वाले के बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन अ थिंग इज थ्रोन 4 टाइम्स, 4 बार हो, कुछ भी हो सकता है वो, डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स, तो ये फिक्स हो गया, ये वाला, ये और ये आपका फिक्स हो गया, PE और PE नॉट चेंज होगा। ओके, विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।